Now, it's not just Mr. Sen Gupta, but left parties are also alleging that an Allahabad Student Union President, Richa Singh, is being targeted by the government and the ABVP. This comes after the University Administration ordered an inquiry following allegations that she got admission into the university as a research scholar on a seat that was actually meant for the reserved category. Allahabad University's first ever student union woman president, Richa Singh, has alleged harassment by the administration. ये सब भटके हुए लोग हैं और भटकी हुई आत्मा का कोई मुझे लगता है जवाब नहीं होता है, इसलिए इनके मुद्दों का नावश्यक तूल देने का कोई वो नहीं है, इनका महत्व समाप्त हो चुका है। Okay, India Today's Athir joins us for more on this. Athir, now these are serious allegations that are being levelled by the left and of course this lady Richa Singh. But the question is, why didn't the university first check? How did she, get administered into the university? How did she gain admission into the university? Because after all, she is the student union president. Well, that's right. She is the student union president. And since there is a perception, there is efforts of self-organization of central universities. Student politics is playing out in various universities. And this is one such example where the president has come forward and she alleges harassment. And she says that her admission is totally legitimate. There is no inconsistency or shortcoming in the admission. However, there are allegations that she took admission in the wrong category. Now, the Vice Chancellor has ordered an inquiry into this matter, and after the inquiry findings, it will be clear as to what the truth is. But yes, the student politics is playing out in various universities across the country. Okay, so Athir, they're telling us a little bit more about this new allegation that has surfaced, how the left feels that Richa Singh, who's the Allahabad Student Union President, is being targeted by the government. We have with us Richa Singh on the phone line. She joins us here on India Today. Richa, thank you so much for speaking to us. And now, just tell us, what exactly is your main complaint? Why are you saying that you are being harassed or you're subjected to, some kind of pressure from the administration side? जी देखिए, मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहती हूँ कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी को ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, वहाँ पे 128 इयर्स में फर्स्ट इलेक्टेड विमेन हूँ जो कि बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आई हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। हम लोग कैंपस में लगातार और मैं एबीवीपी को हरा कर आई हूँ। एबीवीपी अध्यक्ष पे, जो कि हमारी यूनियन है, उसमें सारे जो ऑफिस बेरर्स है वो एबीवीपी के हैं, लेकिन वो अध्यक्ष पे नहीं आ पाए हैं। इसके साथ ही साथ जो एबीवीपी अपनी कैंपस के अंदर ये जो पूरा भगवाकरण करने का प्रयास कर रहा है, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कैंपस में योगी आदित्यनाथ जी को भी हम लोग ने आने से रोका था, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि कम्युनल ताकतों का कैंपस में कोई काम नहीं है। और इसी तरीके से लगातार यूनिवर्सिटी में भी जो अव्यवस्था है, अराजकता है, या जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा गलत अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसमें लोग आरोपी हैं, प्रॉक्टर के ऊपर भी एफआईआर है, मैं इन सारी चीजों पे सवाल उठा रही हूँ। नो बट रिचा, yes, please go ahead. Just complete your sentence. तो बिल्कुल, तो ये बैकग्राउंड है जिसकी वजह से मेरे ऊपर मुझे टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में स्टूडेंट्स की वॉइस रेस हो रही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो वॉइस रेस करते हुए इनको मैं दिख रही हूँ, इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूरी तरीके से मुझे टारगेट कर रहे हैं। और ये हैदराबाद, जेएनयू। Why are you raising this matter now? Why do you feel that you're being targeted? And if you do feel that somebody is pressurizing you, then why didn't you take up the matter with the university administration directly? Why blame the government? देखिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम पूरे देश में इस समय देख लें, तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। वो वहाँ से सारी चीजें रेगुलेट की जा रही हैं और उसी के तहत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी ये चीज हो रही है। अब जिस तरीके से अब मुझे टारगेट किया जा रहा है, ये एक इसलिए है कि एबीवीपी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, उनकी स्टूडेंट विंग है, वो उनको लगातार कैंपसेस में मजबूत करना चाहते हैं। तो उनके खिलाफ जो लोग खड़े हैं, आप उनको कैंपसेस से साइडलाइन करेंगे और उनको मजबूत करेंगे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और वो अगर ऐसा नहीं है, अगर केवल ये एलिगेशन है, तो इस पे क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और एनएचआरडी आके एक बयान देकर ये कहते हैं कि वो तो स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं और वो हर स्टूडेंट के साथ हैं, और जिस भी स्टूडेंट की ग्रीवांस होगी वो उसी तरीके से रेस करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हैदराबाद के इशू में
MHRD ने बार बार इंटरफेयर किया। मैं पिछले 6 महीने में 5 से 6 चिट्ठियां भेज चुकी हूँ, कंप्लेन भेज चुकी हूँ MHRD में। मेरे साथ हैरेसमेंट किया जा रहा है, मुझे मेंटली परेशान किया जा रहा है, मुझे कभी शो कॉज नोटिस दे दी जाती है, मुझे डिसक्रिमिनेशन की नोटिस मिली हुई है, मुझे मेरे इलेक्शन पे कभी ये कमेटी बैठा देते हैं, अब ये मेरे एडमिशन को कैंसिल करने की तैयारी कर रहे हैं। तो लगातार मुझे मेंटली हैरेस किया जा रहा है, लेकिन एक भी जवाब वहाँ से आज तक नहीं आया। मुझसे कभी पूछने की कोशिश भी नहीं की गई कि आप वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो ये जरूर होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट या MHRD, विशेष रूप से MHRD इसमें स्टैंड लेती, लेकिन वो कोई स्टैंड नहीं ले रही है। Okay, just stay with me, Richa. If you can just kindly hold the line, because we have the complainants also reaction coming in, that of Rajneesh. Let's just listen into him. जो ऋचा सिंह है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग, ये इतना जिसका छात्र संघ का एक महत्वपूर्ण स्थान इस देश में रहा है, उसको कलंकित करने का काम किया है। अगर ओबीसी छात्र एडमिशन नहीं भी लेना चाहता है या एडमिशन नहीं ले रहा है, तो ओबीसी छात्रों की जो लिस्ट रहती है, जगह रहती है, वो खाली रह जाती है। लेकिन यहाँ एक लंबी कतार थी एडमिशन लेने वालों की। तो ऋचा सिंह ने, जो समाजवादी पार्टी पिछड़ों की बात करती है, पिछड़ों के नाम पे लड़ती है, तो ऋचा सिंह ने उस समाजवादी पार्टी के छात्र का हक छीना है। All right, Richa, I don't know if you got a chance to, hear what Mr. Rajneesh Singh had to say about that. What do you have to say? And also just one last question to you. You're saying that you repeatedly have written to the NHRD, but you have got no response. What about the university? What about the Vice Chancellor? Have you approached the management directly? What do they have to say about this? वाइस चांसलर को भी हम लोगों ने अप्रोच किया था, लेकिन वाइस चांसलर हम लोगों से कोई कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। और यूनिवर्सिटी में मेरी कई कंप्लेंट्स हैं, वाइस चांसलर ने ना तो उनके ऊपर कोई कमेटी बनाने की कोशिश की, ना उन्हें रिजॉल्व करने का कोशिश किया, और ना ही मुझे उसका कोई जवाब मिला। इसलिए भी मुझे MHRD तक जाना पड़ा। जहां तक रही रजनीश की बात, तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि रजनीश वो कैंडिडेट है जो मुझसे चुनाव में हार गए थे, तो अभी तक अपनी ये हार को पचा नहीं पा रहे हैं। और ये इस जो एडमिशन की बात है, तो मैं 101% कह रही हूँ कि इस पे सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। But did you get admission into the university on a seat that was actually meant for the reserve category? That's the allegation against you. What do you have to say about that? मेरा एडमिशन 100% पूरी तरीके से सही है, और अगर वो गलत होता तो 2 साल में आज तक ये सवाल नहीं आया। आज जब मैं बतौर यूनियन की प्रेसिडेंट काम कर रही हूँ, तो आज ये सवाल क्यों आ रहा है? ठीक है, मेरा एडमिशन 100% करेक्ट है। मैंने किसी की सीट नहीं ली है, मैंने क्रेट का एडमिशन देके मेरिट से आके मैं आई हूँ, और वो दोनों सीट जनरल की सीट थी, तो इसमें एडमिशन का एक्चुअली मामला ही नहीं है। ये और रजनीश सिंह जो ये बात कह रहे हैं, देखिए रजनीश अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, और रजनीश के लिए मैं एक विशेष बात भी कहना चाहती हूँ। देखिए, ये सुननी बहुत जरूरी है कि रजनीश उन लोगों में से हैं जो कि लड़कियों की और महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते। आप इनके वर्ड्स को केवल देख रहे हैं कि कलंकित करना और तमाम चीजें हैं। तो हमारा इससे मैं इनके तो जवाब, इन सवालों का तो मैं जवाब ही देना नहीं समझती हूँ, क्योंकि ये मेंटली इलेक्शन के बाद इनका मेंटली कुछ गड़बड़ हो गया। All right, that was Richa Singh, the Allahabad Student Union President, who has very strongly refuted all the allegations against her, saying that she got admitted into the university only on her merit.